So this is about the draft which is there for 2022. I'm not going to read the whole draft to you because it is actually still at the draft stage, and you all can, those who are interested, they can get this draft from the National Medical Commission website, where this is towards the end of the draft which has come up for medical professionalism for health professionals. So next slide, please. You can give it to me. So this is how this draft looks like. It is part of the National Medical Commission, New Delhi, dated, it's come a couple of months ago in 2022. And these are the guidelines for practice of telemedicine in India. And this is to enable the registered medical practitioners to provide healthcare using telemedicine. So there are several sections of this, there are about 8 of them, and 2 are actually, the last 2, sections 7 and 8 are devoted to figures and annexures. The first one is about definition of telemedicine, and there isn't much difference to what has already been told by Dr. Murthy, which was there in 2020 guidelines. Then there are some differences in the technologies which are used for telemedicine today and the modes of communication. We know that technology is ever evolving, and there are new systems which keep coming, new softwares which are coming there, and they all have to be included in the ambit of telemedicine practice. And as you know, there is a possibility of, this is like a regulatory authority on telemedicine practice. So all these softwares which are mushrooming these days all over the country, practice of telemedicine, need to be standardized, and they have to be HL7 compliant, and they have to really ensure the patient confidentiality, because some of the softwares like WhatsApp, etc., which had been used in 2020 guidelines, the whole data actually is going to the Facebook, and you know how people have been using that data for different purposes. So these are the guidelines which are specific, elements specific to telemedicine is appropriateness of telemedicine, identification of RMP and the patient, as was told that you have to display your MCI registration number, and the patient also has to display his Aadhaar number or any specific unique ID which is there, so that you do not end up talking to someone who is not actually the patient. Then the mode of telemedicine, it's communication, appropriateness, informed consent. We do feel that once a patient initiates a call or patient initiates a visit to the hospital, it is implied that this patient is consenting to be, involved in a consultation with the doctor. But there are situations in which an informed consent may be prescribed or may be done once a consultation starts. Then the type of consultation, whether this is patient to doctor or doctor to doctor consultation. Then, yes. Yeah, this consent ke baare mein you can tell in Hindi also, because many of the Northeast and other people are there. Yeah. Very relevant. So informed consent होता है कि आप एक स्वीकृति देते हो अपने एग्जामिनेशन के लिए to any doctor. और जैसे कि देखा जाता है कि फैमिली प्लानिंग सिचुएशंस में या whenever there is a gynae examination which is involved, the examination itself is quite is something which is which includes a lot of privacy. And I would like to ask Aruna ji, who is our gynecologist. She's an assistant professor of obstetrics and gynecology in the telemedicine center, and she has been doing a number of consultations with women. So how do you look at this particular aspect? Thank you, ma'am. Actually, जो भी patient टेली कंसल्टेशन करते हैं रिगार्डिंग गायनी कंप्लेंट्स, जो ऑडियो वीडियो कंसल्टेशंस होती है जिसमें मैं पेशेंट को देख पाती हूँ, पेशेंट मुझे देख पाते हैं और पेशेंट मुझसे बात कर रहे हैं, तो उनसे तो बहुत अच्छे से बात करके समझा के यूजुअली वो लोग अलाउ कर देते हैं कि ठीक है। मैं उनको समझाती हूँ कि ठीक है, शायद ये चीज़ है, या तो तुम इस एग्जामिनेशन के लिए किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास इन पर्सन जाओ, या फिर अगर टेली पे ही तुम करना चाहते हो तो जो भी वहाँ पे अवेलेबल हैं हेल्थ केयर वर्कर जिन्होंने कॉल किया है, यूजुअली वो लोग उनको कॉन्फिडेंस में लेके पेशेंट कंसेंट देता है, देन दे अलाउ एग्जामिनेशन। यूजुअली वो लोग या तो पिक्चर क्लिक करके शेयर कर लेते हैं या फिर लाइव दिखा देते हैं इन अ सेपरेट रूम ऑफ कोर्स। बिकॉज इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक बड़ा ही लीगल टाइप का प्रोसीजर है,
जो कि पर आपको मालूम है कि आजकल टेली एविडेंस भी प्रैक्टिस किया जा रहा है, जिसमें मतलब लीगल opinions are given on tele technology, and in TGI we do that, and your signatures actually get identified during this video exchange process. And these days one can even have electronic signatures, but most of our patients cannot do that, and there is no system which is there in eSanjeevani platform, at least where you can have. So it is mostly a verbal consent, and it is if you want a written consent for something, then you will have to have that kind of document, or you'll have to have an EMR in which that kind of document is inserted. उसके बाद पेशेंट इवैल्यूएशन इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, और बहुत से एथिकल इश्यूज हैं जो टेलीमेडिसिन के, वो भी इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद फ्रेमवर्क ऑफ टेलीमेडिसिन में वी हैव पेशेंट एंड RMP, केयर गिवर एंड RMP. RMP is registered medical practitioner, and this is a person who holds a medical degree and who has a number of Medical Council of India registration number, which he or she is supposed to display. Then patient and RMP can also be connected with a health worker, through a health worker. Just health worker is like a link worker who is there in a sub center or a peripheral center, और वो patient को डॉक्टर के साथ कनेक्ट करता है. उसी तरह से RMP कैन बी कनेक्टेड टू अनदर RMP. जैसे अगर मुझे कोई स्पेशल कंसल्टेशन चाहिए अबाउट सम कैंसर पेशेंट एंड आई वांट टू टॉक टू डॉक्टर प्रधान, तो इट इज फ्रॉम अ स्पेशलिस्ट टू स्पेशलिस्ट और फ्रॉम अ डॉक्टर टू अ स्पेशलिस्ट. उसी तरह से टेलीमेडिसिन ट्रायज एंड कोविड केयर फॉर पेशेंट्स इज ऑल्सो समथिंग विच हैज नाउ कम अंडर द purview of telemedicine practice guidelines, which was not there when we started these telemedicine practice guidelines in 2020, because now we have so much of information which we have gathered about COVID, and उनको कैसे ट्रायज का मतलब होता है कि जब भी कोई पेशेंट रिपोर्ट करता है तो हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कितना सीरियस है, और जो पेशेंट ज्यादा सीरियस होता है चाहे वो बाद में आया हो लेकिन उसको पहले अटेंशन दी जाती है. तो उस तरह की अप्रोच जो है वो भी टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस 2022 में इंक्लूड की गई है. उसी तरह से टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स की गाइडलाइंस हैं, और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो नेशनल मेडिकल कमीशन की हैं वो भी इसमें लिखी गई हैं, और बाकी तो इसमें जो फिगर्स एंड फ्लो चार्ट्स हैं. एंड आई नाउ रिक्वेस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ टू फॉलो अप दिस प्रेजेंटेशन and also give some clinical examples. Thank you, ma'am. So now that we have a detailed overview of what is the हिंदी में बोल सकते हैं. पर्सपेक्टिव, जो गाइडलाइंस का पर्सपेक्टिव है, अब इतनी जानकारी के बाद इसकी रेलेवेंस क्या है क्लिनिकली, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. उस रेलेवेंस के लिए मैं ये चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि टेलीमेडिसिन के थ्रू कंसल्टेशन प्रोवाइड करना एक सिंपल चीज़ नहीं है. इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं जो काफ़ी बार इग्नोर हो जाते हैं, और क्योंकि टेलीमेडिसिन इतना बढ़ के आगे आ रहा है तो उसके जो लीगल इश्यूज हैं, एथिकल इश्यूज हैं, जो आगे हम डिटेल में बात भी करेंगे, एक अगला लेक्चर है उस पर उनके बारे में जानकारी और जागरूकता बहुत ज़रूरी है, और किस लेवल पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसका जानना भी बहुत ज़रूरी है, हर लेवल पे, चाहे वो RMP हो, चाहे वो लिंक वर्कर हो, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो स्पेशलिस्ट हो, या चाहे वो सुपर स्पेशलिस्ट हो. तो जैसे डॉक्टर मूर्ति और मीनू मैडम दोनों ने बात करी है कि टेली कंसल्टेशन प्रोवाइड करने से पहले ये बहुत जानना ज़रूरी है कि जो भी बात हुई जा रही है टेलीमेडिसिन के थ्रू वो अप्रोप्रिएट है टेलीमेडिसिन के थ्रू हैंडल करने के लिए या नहीं. ये स्टेप 1 है. काफ़ी सारी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं या ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो टेलीमेडिसिन के थ्रू हैंडल करी ही नहीं जा सकती, तो वो एट द फर्स्ट स्टेप हमें फिल्टर आउट करके हमें एडवाइस करना है कि आप अपना इन पर्सन कंसल्टेशन लो. ये ना ही हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, बट इट इज ऑल्सो मैंडेटरी फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव. फिर हमने आइडेंटिफिकेशन की बात करी है कि इम्पोस्टर्स काफ़ी बार गलत लोग कंसल्टेशन ले रहे होते हैं, गलत लोग कंसल्टेशन दे रहे होते हैं. तो आइडेंटिफिकेशन की हमने काफ़ी डिटेल में बात करी है. दैट इज इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट फ्रॉम द RMP's पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम द पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कंसेंट, ये हमने काफ़ी बात कर ली है, तो इस पर मैं समय ज़ाया नहीं करूँगा. मैं थोड़ा क्लिनिकल रेलेवेंस कैसे है उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगा. ये जो गाइडलाइंस हैं ये हमने इतनी डिटेल इसमें बात थोड़ी की नहीं है, पर इसमें ये है कि एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर, हम ऐसा नहीं है कि जो हमें ठीक लगे दवाई हम वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी दवाइयां हैं जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है. तो दवाइयों को फिल्टर किया गया है कि कौन सी दवाई सेफ है, जो एक रूटीन मार्केट से भी मिल सकती है, वो कोई भी
अप्रोप्रिएटली टेली कंसल्टेशन के थ्रू प्रोवाइड कर सकता है। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिसके लिए वीडियो कंसल्टेशन मैंडेटरी है, और कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो टेलीमेडिसिन के थ्रू बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। उन दवाइयों में शामिल है जैसे कैंसर की दवाइयां, क्योंकि उनके अगर सही से यूज ना किया जाए बहुत सारे दुरुपयोग हैं। काफी सारे दवाइयां ऐसी हैं जो इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं। तो ये सारी दवाइयां हैं जो हम लिख ही नहीं सकते, चाहे वो कितना ही उचित हो। तो इस सब के बारे में जानकारी हमारे बैक ऑफ द माइंड पे रहना बहुत जरूरी है। और इस जो आज कोर्स है उसका उद्देश्य यही है कि एटलीस्ट आपको एक सेंसिटाइजेशन मिल जाए कि हाँ ऐसा भी कुछ है कि हम नहीं ये दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। ये जो लिस्ट है इनकी जानकारी हम इस प्रेजेंटेशन में कवर नहीं करेंगे, बट ये जानकारी की ऐसी लिस्ट एग्जिस्ट करती हैं कि कौन सी दवाइयां दे सकते हैं कौन सी नहीं। ये बड़ा जरूरी है किसी भी हेल्थ वर्कर जो कि प्रिस्क्रिप्शन में इन्वॉल्व है उसके लिए जानना। हमें आई थिंक ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस के लिए जो दवाइयाँ यूज की जाती हैं और या जो इक्विपमेंट्स यूज की जाती हैं उनको क्या हम टेलीमेडिसिन से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हार्मोन्स दिए जाते हैं या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दिए जाते हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है, और वैसे ही बाकी के एजेंट्स जो हैं उनके बारे में क्या। या प्लीज। Actually, if mode of teleconsultation is through real-time audio video, जहाँ हम पेशेंट को देख सकते हैं, मतलब पेशेंट से सुन सकते हैं और पेशेंट से बिल्कुल लाइव प्लेटफॉर्म पे फेस टू फेस बात कर सकते हैं, उसके विजुअल क्यूज और बाकी सब चीजें देख सकते हैं। तो उस वाले प्लेटफॉर्म पे OCP जितने भी कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड हैं वो हम सारे के सारे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स की बात करें तो कुछ टेम्परेरी परमानेंट, ऑब्वियसली परमानेंट जो स्टरलाइजेशन है वो तो हम टेली के थ्रू नहीं कर रहे एज ऑफ नाउ। तो टेम्परेरी में शॉर्ट एक्टिंग है एंड लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल है। जो लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल उसमें कॉपर्टी और इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। तो रादर जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है उनको देने से पहले किसी भी तरह के एग्जामिनेशन की जरूरत भी नहीं है। मतलब आई मीन विदाउट डूइंग PSP एग्जामिनेशन, विदाउट डूइंग breast examination, any sort of gynae examination is not required before prescribing these progestin only injectable contraceptive. And of course they are long acting, once in every 3 months देना होता है, प्लस माइनस 2 to 4 weeks ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे कॉन्ट्रासेप्शन की एफिकेसी कम नहीं होती। तो वो एक ऐसी चीज आई थिंक पेशेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इससे, क्योंकि उसको इतने किलोमीटर्स चल के इतने किसी डॉक्टर के पास पैसे खर्चो, टाइम खर्चो, आई मीन बहुत सारी चीजें वो सब नहीं करनी मुझे लगता है कि उससे प्रोग्राम को भी फायदा Yes, होगा, ma'am, क्योंकि yes, ma'am. वो फिर इजीली प्रैक्टिस किए जा सकते And हैं। moreover, Ma'am, can I request you to remove the mask, though it is not to be asked for more clarity, though it is wrong on my part. okay sir. Be a little louder. आई थिंक कॉन्ट्रासेप्शन एक ऐसी चीज है जो टेली मेडिसिन, टेली प्लेटफॉर्म पे आराम से हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड मोरओवर कॉन्ट्रासेप्शन की जब भी हम बात करते हैं तो पेशेंट की एजुकेशन और काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और ऑल्सो मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन सी एज वाले पेशेंट को कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव आसानी से दे सकते हैं और कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव इस एज ग्रुप में बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव हैं जैसे कि OCPs, जो हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, वो हर किसी पेशेंट को नहीं दे सकते। ऑब्वियसली अगर किसी पेशेंट को कोई डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या फिर किसी की 35 या 40 से ज्यादा, उनमें हम OCPs नहीं देंगे, वो MEC 3 और 4 कैटेगरी में चला गया। इन कॉन्ट्रास्ट जो इंजेक्टेबल प्रोजेस्टिन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव है वो किसी भी एज ग्रुप में दे सकते हैं, और मैक्सिमम जितने भी मेडिको सर्जिकल डिसऑर्डर्स हैं वो सारे उनके आई मीन कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। तो ये बताना कि कैसे करके व्हाट शुड करेक्ट यूज कैसे करना है, क्या उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कितना उसका फेलियर रेट है, कब स्टार्ट करना है, मेंसेस के कौन से डे से स्टार्ट करना है, व्हाट इफ अगर मेंसेस के इतने दिन बाद स्टार्ट किए तो कुछ बैकअप लेना है कि नहीं लेना है, और उनके क्या साइड इफेक्ट एक्सपेक्टेड हैं, एफिकेसी कितनी है, और बाय चांस अगर ओवरड्यू हो जाए तो कितने चांसेस प्रेगनेंसी ठहर सकती है, और अगर प्रेगनेंसी ठहरती है आई मीन वो इंट्रा यूट्राइन होगी या बाय चांस टॉपिक होगी, वो सब समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉन्ट्रासेप्शन का। सो आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए ये होमवर्क है कि इस पर्टिकुलर स्लाइड में नीचे एक अप्रूव्ड ड्रग दी गई है, अप्रूव्ड ड्रग लिस्ट है, which is by the CDSCO government.in. That is the website on which you can open this and then see कि contraceptive medications जो आप लोग prescribe करते हैं, oral contraceptives, how many of them are listed here and approved by the government for use through telemedicine. So इस तरह की चीजें हमें जाननी पड़ेंगी, और आपकी क्योंकि सबकी स्पेशलिटी इज रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग, so I think it would be important for you to know what are the drugs and whether all the drugs which you are using otherwise can be prescribed over telemedicine.
सो डॉक्टर अरुणा ने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये सब पॉसिबल है, और जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग वाले जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं आज, उनके लिए तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि वो अपना काउंसलिंग टेली के द्वारा कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे भी कर सकते हैं, ताकि वो मोटिवेट कर सकें फैमिलीज को टू अडॉप्ट वेरियस मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग. So next slide, please. Ma'am, I would like to Yes. inform that we will share all the presentations and Yeah. also the telemedicine practice guidelines PDF files 2020 वाला and 2022. Yes. तो आज रात को नहीं तो कल कर जाएंगे. हाँ, so जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप उन्हें देखिए, और क्योंकि वो अभी ड्राफ्ट की फॉर्म में है और आप जो भी सजेशंस उस पे देंगे तो Draft वो, जैसा ही बोले. हाँ, तो वो मानी जाएंगी और उसको उनको इवैल्यूएट किया जाएगा और उनको फिर उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा. थैंक यू और डॉक्टर. वन क्वेश्चन मैडम, LNG IES और इम्प्लांट्स के बारे में भी वो लोग जानना चाहते हैं, बताइए. LNG IUD तो हम इंसर्ट कर सकते हैं, आई मीन किसी भी पेशेंट को इंसर्ट कर सकते हैं. उससे पहले मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछना है हमने पेशेंट का कि मेंस्ट्रुअल कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. LNG IUD के अदरवाइज भी बहुत सारे फायदे हैं. जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का पेशेंट है, LNG IUD के लिए कोई एज लिमिट नहीं है. आई मीन किसी भी एज की फीमेल यूज कर सकती है LNG IUD. और वैसे कोई पेशेंट जिसको हिपैटिक डिजीज है या फिर BP ज्यादा है, जिन मरीज को हम ओरल प्रोजेस्टेरोन नहीं दे सकते, उनके लिए LNG IUD मतलब प्रोजेस्टेरोन वाली IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइस. It's just kind of copper with progesterone in it. That is very safe. So no age limit. Very useful for this heavy menstrual bleeding patients also. If somebody is more than 35 years, has heavy menstrual bleeding and willing for LNG IUD, तो of course हमें EB करना है before inserting this. We have to rule out की hyperplasia या फिर कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं, खासकर जिसकी एज 35 से ज्यादा है, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, उसमें EB करनी चाहिए बिफोर पुटिंग दिस. और इम्प्लांट्स, और एक्चुअली इम्प्लांट्स जो हैं वो ना हमारी इंडिया का जो फैमिली वाला वो है उसमें नहीं है, हम नहीं यूज कर रहे. ये नेपाल वगैरह में ज्यादा यूज करते हैं, हम नहीं यूज कर रहे, हमारे फैमिली वेलफेयर प्लान में नहीं है. मतलब मैंने भी किसी को PGI में जब हम फिजिकल OPD लगाते थे, हमने तब भी किसी को नहीं दिया. राधा रिमूव जरूर किए हैं, तो इम्प्लांट जो बाहर से लगवा के आए थे लोग, हम नहीं यूज कर रहे. बट LNG IUD हम यूज कर सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है. ओके, थैंक यू डॉक्टर अरुणा. सो नेक्स्ट प्लीज. ये जो स्लाइड है, ये हमने ये एडेड दिस फोकसिंग ऑन द ऑडियंस दैट वी हैव. तो ये जो स्लाइड है एक्चुअली एक फ्लो चार्ट है जो ये 2022 गाइडलाइंस ने मेंशन किया है. दिस इज एक्चुअली अ फ्लो चार्ट फॉर हाउ टू टेक अ टेली कंसल्टेशन व्हेन अ हेल्थ केयर वर्कर इज कंसल्टिंग एन RMP. तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि व्हेन अ हेल्थ वर्कर इज टेकिंग अ कंसल्ट विद एन RMP, एन एक्सप्लिसिट पेशेंट कंसेंट इज मैंडेटरी. तो जो मीनू मैम ने इम्प्लाइड कंसेंट की बात की थी, वो तभी लागू है जब पेशेंट ने खुद बात करी है, खुद कंसल्टेशन इनिशिएट करी है, खुद वो कंसल्टेशन ले रहा है. जब एक हेल्थ वर्कर पेशेंट के बिहाफ पे कंसल्ट ले रहा है RMP से, which may be applicable for a lot of you who are sitting in this audience, then an explicit patient consent is mandatory. तो सवाल ये आता है कि एक्सप्लिसिट पेशेंट कंसेंट ले कैसे. तो ये रिटन भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है. तो वर्बल कंसेंट के लिए जो गाइडलाइंस है वो क्या कहती हैं कि पेशेंट की आवाज में रिकॉर्डिंग के, हाँ वो ही और शी कंसेंट्स फॉर दिस कंसल्टेशन, वो एक रिकॉर्डिंग की फॉर्म में, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग फोन पे हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जिससे थ्रू टेली कंसल्टेशन प्रोवाइड की जा रही है, वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड में रखना RMP के लिए मैंडेटरी है. So that is very important when a healthcare worker is taking consult with an RMP. That is one. The second most important point is because इसमें healthcare worker patient के behalf पे consult ले रहा है, तो patient जब चाहे उस टेली कंसल्टेशन से एग्जिट कर सकता है और डॉक्टर भी उस कंसल्ट से जब चाहे एग्जिट कर सकता है. इसका प्रीमाइस या राशनल यही है कि कई बार ये सब फेक कंसल्ट्स या कोई फोर्सफुल कंसल्ट्स ना हो, स्पेशली जब हम कॉन्ट्रासेप्शन जैसी सेंसिटिव इश्यूज की बात कर रहे हैं. फोर्स्ड कंसल्टेशंस या पेशेंट की कंसेंट के बिना या उस पे दबाव डाल के कंसल्टेशन हो, वो सारी चीज को इंश्योर करने के लिए ये इंश्योर किया गया है. और बाकी जो मेन पॉइंट्स है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उस पर हम टाइम नहीं जाया करेंगे. ये एक जैसे ई-संजीवनी की मीनू मैम ने बात करी, ये नेशनल लेवल पे टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है जो प्रमोट किया जा रहा है फॉर कंसल्टेशंस. Not just from patient to the RMP, but also from doctor to specialist as well as doctor to super specialist. तो एक ये स्नैपशॉट है कि वो कैसा दिखता है हमारे लैपटॉप पे. ये फोन के थ्रू भी किया जा सकता है जैसे मैम ने बताया.
तो इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें इन गाइडलाइंस के अंडर ये कंसल्टेशंस का स्कोप बहुत ज्यादा है। पेशेंट डॉक्टर से बात कर सकता है, डॉक्टर डॉक्टर से बात कर सकता है, जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर से बात कर सकता है, एक स्पेशलिस्ट से भी बात हो सकती है और एक सुपर स्पेशलिस्ट से भी बात हो सकती है। मतलब इसका जो स्कोप है वो 0 से लेके मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारा स्पेक्ट्रम कवर कर रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो हूएवर इज देयर इन द ऑडियंस। तो मैं बस एक ब्रीफ से एग्जांपल्स के थ्रू कवर करना चाहूंगा कि ये टेलीमेडिसिन से हम कितना कुछ फायदा कर सकते हैं मरीजों का। तो ये कुछ जो ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये कंसल्ट प्रिस्क्रिप्शन है जो कि लद्दाख, जो कि एक दूर दराज का एरिया है जहाँ पर कनेक्टिविटी की इश्यूज, इतना दूर है, लोगों को कंसल्टेशन की प्रॉब्लम होती है। तो पीजीआई में बैठे बैठे कैसे हम लोग उनकी कंसल्टेशंस को हैंडल करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये एक उसका स्नैपशॉट है। तो ये एक पेशेंट था 51 ईयर्स का मेल, वो कंप्लेंट करके आया था कि उसके हाथ पैर मुड़ रहे हैं, ऐसे करके ट्विस्ट हो जाते हैं। उसको मेडिकल टर्म्स में हम कार्पोपिडल स्पैज्म कहते हैं, जो कि कैल्शियम, बॉडी में कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो बॉडी में कैल्शियम की कमी हजारों चीजों की वजह से हो सकती है, जो कि कुछ टेस्ट, जो कि खून की जांचें या कुछ एक्सरे सीटी स्कैन के थ्रू हम कारण पता कर सकते हैं बिना मरीज के यहाँ पर आए। तो ये एक ऐसा ही पेशेंट है जो हमारे पास टेली कंसल्टेशन के थ्रू पूछा गया लद्दाख से। तो हमने उसे ब्लड टेस्ट एडवाइस किए, एक दिमाग का सीटी स्कैन एडवाइस किया, एक गर्दन का अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया, और उस सब टेस्ट के बेसिस पे हम उनका डायग्नोसिस, जो कि है हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, मतलब कि अंदर हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, उसमें एक पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है, वो कम काम कर रहा था, जिसकी वजह से मरीज का कैल्शियम कम था और उसके हाथ पैर टेढ़े हो रहे थे। तो जहां तक रही, ये एक बड़ा स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिटी लेवल का डायग्नोसिस है, पर घर बैठे बैठे लद्दाख जैसे डिफिकल्ट एरिया में रहते हुए पेशेंट का विद इन अ स्पैन ऑफ 14 डेज या 1 मंथ डायग्नोसिस बन गया था और ट्रीटमेंट चालू हो गया था, जो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप पेशेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उसको घर बैठे बैठे एक डायग्नोसिस भी मिल गया, ट्रीटमेंट मिल गया, कितना सेटिस्फाइंग है पेशेंट के लिए भी, डॉक्टर के लिए भी। ये एक सिमिलर चीज है। तो जैसे वहां पर तो बीमारी भी नहीं पता थी, बीमारी भी पता चल गई, इलाज भी मिल गया। पर ऐसे बहुत सारे सिनारियो होते हैं, हमें बीमारी मरीज के पहले से पता है, पर उसका इलाज फिट नहीं बैठ पा रहा। जैसे डायबिटीज है, तो इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे सबसे ज्यादा डायबिटिक्स है। तो हमें बीमारी का पता है, फिर भी इलाज सेट नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें दवा को ऊपर नीचे करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शुगर ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। तो ये एक ऐसा ही मरीज था, 12 साल की छोटी लड़की, जिसको जन्म से, मतलब छोटी उम्र से ही डायबिटीज यानी शुगर ज्यादा का पता चल गया था। उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे थे, पर इंजेक्शन लगने के बावजूद उसका शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा था, उसे बार बार भर्ती होना पड़ रहा था। तो एक ऐसी कंसल्टेशन थी, वहां से हमारे पास पूछा गया कि हमें शुगर कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर पीजीआई में बैठे हुए मरीज लद्दाख में है, हमारे पास इंफॉर्मेशन जो हमने मंगवाई वो ये थी कि मरीज को क्या क्या इंसुलिन चल रहा है, किस किस टाइम पे क्या क्या शुगर है। तो क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, क्योंकि एक टाइम की इंसुलिन अगर ज्यादा कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो वो जानलेवा भी हो सकती है। तो ये बड़ा ही डेलिकेट सा डिसीजन होता है कि किसको बढ़ाया जाए, किसको कम किया जाए। पर क्योंकि हमारे पास समय समय की शुगर की मॉनिटरिंग थी, जो कि रिक्वायर्ड है, जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर कर रहे थे, उसका देखते हुए और जो उनका इंसुलिन चलता हुआ है उसको देखते हुए और कुछ ब्लड की जांचें करते हुए, हमने उनकी इंसुलिन की डोज को चेंज कर दिया बैठे बैठे इतना दूर, और उसके बाद उनके शुगर्स भी कंट्रोल हो गए, पेशेंट ठीक भी हो गया, और अस्पताल में जो भर्ती था वो मरीज घर खुश गया। तो एक और स्पेक्ट्रम ये कवर करता है कि बीमारी पता है, इलाज सेट नहीं हो पा रहा, पर टेलीमेडिसिन के थ्रू सुपर स्पेशलिटी के रास्ते हम स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करके इलाज को फिट कर सकते हैं। ये कहते हुए मैं एक सिल्वर लाइनिंग भी दूंगा, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग और एज अ डार्क पैच एज वेल। तो ये एक पेशेंट ऐसे ही है, 30 साल की फीमेल है, उसको झटके पड़ रहे थे, सिर में झटके पड़ रहे थे, हाथ में झटके पड़ रहे थे, उन्होंने दिमाग का एमआरआई कराया था और उनको एक गांठ मिली थी दिमाग में। तो ये एक ऐसी चीज है जो हम टेली कंसल्टेशन के थ्रू नहीं हैंडल कर सकते। तो हम चाहे टेलीमेडिसिन के कितने ही प्रोपोनेंट बन जाए, बट देयर आर लिमिटेशंस टू टेलीमेडिसिन दैट वी नीड टू एक्नॉलेज। तो इस केस के जरिए मैं वही हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये गांठ है दिमाग में, वो दिमाग की गांठ क्या है, वो कुछ जांचें हम कर सकते हैं, जो कि की भी गई इस कंसल्टेशन के थ्रू। रास्ते कंसल्टेशन मैंने ही प्रोवाइड की थी, तो हमने कुछ जांचें करी, ब्लड की जांचें करी, छाती का एक्सरे किया और भी स्पेशलिस्ट टेस्ट किए, बट उस पर जब बीमारी नहीं पकड़ में आई, वहां हमें हाथ खड़े करने पड़ते हैं और हमें बताना पड़ता है कि इसके आगे हम टेलीमेडिसिन के थ्रू हैंडल नहीं कर सकते। तो एक इन पर्सन कंसल्टेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे केसेस में मांस के अंदर कई बार क्या जाता है, नीडल डाल के हमें बायोप्सी करके देखना पड़ता है। तो कहाँ पर हमें रुकना है, कहाँ पर हम टेलीमेडिसिन का फायदा ले सकते हैं,
कहाँ में इन पर्सन मैंडेटरी है, ये बहुत जरूरी है। और इन सब केसेस के थ्रू मैं आपको यही एक फ्लेवर देना चाहता था। ये बहुत इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये 10 मिनट में नहीं कवर किए जा सकते, बट एक फ्लेवर लेने के लिए ये आपको एक स्पेक्ट्रम कवर कर सकता है। जहां तक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात है, काफी सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, और मैं एक ब्रीफ में आपको एक ओवरव्यू दूंगा। अभी तक जो भी बात की है, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, बहुत सारे एमिनेंट स्पीकर्स हैं आज हमारी इस गैदरिंग में, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम उन सबको सुन रहे हैं। तो उनकी बातों का जो एक निष्कर्ष है वो ये है कि जो हम अपनी जो मैसेजेस और व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू एक इनफॉर्मल मेडिकल एडवाइस भी देते हैं, दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर द गैमेट ऑफ टेलीमेडिसिन, and because it falls under that gamut, it is subject to the legal and ethical principles that apply. तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही इनफॉर्मल वे में देना sometimes may be very disastrous to us, अगर हम सामने वाला बंदा हमारी टांग खींचना चाहे तो। टेलीमेडिसिन एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, इट comprises of 7 important steps, और इन सब 7 स्टेप्स की जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी स्टेप पे फॉल्टर किया जाए तो हमारे लिए खुद के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। कंसेंट, हालांकि हमारा मरीज हमारे सामने नहीं है, बट कंसेंट बहुत जरूरी है। इम्प्लाइड तभी है पेशेंट जब खुद पेशेंट ने इनिशिएट किया है। अगर और कोई भी उसके बिहाफ पे कंसल्ट कर रहा है तो एक रिटन या वर्बल कंसेंट मैंडेटरी है, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन एट आवर लेवल इज एसेंशियल। प्रिस्क्रिप्शन के टाइम पर हम क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं, इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। लूजली लिखना बहुत अनिवार्य नहीं है। जैसे सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, जैसे नींद की गोली है, हम चलते फिरते लेफ्ट राइट सेंटर जो भी मेडिकल फील्ड में होगा, कई बार अपने रिश्तेदारों को बोल देता है आप नींद की गोली ले लो, पर अगर आप गाइडलाइंस के हिसाब से जाएंगे, अगर ये चीज ऑन पेपर आ गई और किसी ने ऑब्जेक्ट कर दिया, आपने कैसे लिख दिया, देन यू विल बी इन अ सूप। इसीलिए ये जानना कि क्या लिख सकते हो क्या नहीं लिख सकते बहुत जरूरी है। एंड जो लीगल प्रिंसिपल्स एक इन पर्सन कंसल्टेशन पे अप्लाई होते हैं, द सेम लीगल प्रिंसिपल्स अप्लाई फॉर अ टेली कंसल्टेशन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो ऑल ऑफ देम. And we have a dedicated lecture on the legal aspects, and I think I'll stop here and I'll hand over to Meenu ma'am to conclude. Thank you, Siddharth, for such a lucid talk, and thank you, Dr. Aruna, for taking up all the difficult questions.